start. Yesterday we had studied about some basic concepts about electrostatic potential, and that was regarding class 10th. Okay, so now today we are going to discuss in detail about electrostatic potential, and we will find the derivation for electrostatic potential due to single point charge. Okay, so in class 10th we have studied about electrostatic potential, that this potential is denoted by V, and this V is equals to work done per unit charge. Okay, so the definition of this is the electrostatic potential at any point is in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Keep in mind, we must write in definition that without acceleration, work done in bringing unit positive charge, this is infinity, and unit to bring the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to any point. Okay, so the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to any point is called electric potential at that point. So electric potential at point P is equals to, let us suppose we bring plus Q charge from infinity to any point. Suppose we bring plus Q charge from infinity to any point. So प्लस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में W वर्क डन करना पड़ता है, तो प्लस 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में वर्क डन W अपॉन Q करना पड़ेगा, and this work done per unit charge is called electric potential. This is the basics that we have studied in class 10. Okay, so keep in mind, when we are bringing this charge from infinity to this point, there should not be any type of acceleration. Okay, so we have to bring it at uniform rate of change of position. Now we will derive the relation and for potential due to a point charge. Okay, so today's topic is potential due to a point charge. This is very, very important regarding board examination point of view. This derivation has come many a times. Okay, so this in diagram, this point is let us suppose at infinity. As we all know that infinity cannot be seen on paper. Okay, so we have represented it as dotted line to and extended up to the maximum distance, whatever possible. So this distance is infinity. Okay, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is infinity. And here let us suppose it is plus 1 coulomb charge is there. What we have to do? We have to bring this plus 1 coulomb charge to point first of all at point P. But here we see that we have to find potential due to point charge. And what is this point charge? This point charge, let us suppose, is plus Q. Capital Q is the plus Q charge, is the point charge which is kept at origin. This O is denoted as origin. Okay, this is taken as reference point. Okay, so origin पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके, आ रही बात समझ में सबको? एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है. सो अब इसके लिए हम लोग डेरिवेशन लगाएंगे और डेरिवेशन के लिए डेफिनेशन का हेल्प लेंगे. तो इस
प्लस क्यू चार्ज की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस पी डिस्टेंस पे हम लोग को पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। ठीक है, तो इंफिनिटी से पॉइंट क्यू तक, पॉइंट पी तक हम लोगों को लेके जाना है। किसको किसको लेके जाना है? +1 कूलम चार्ज को। तो +1 कूलम चार्ज को पी तक लेके जाएंगे, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस पोटेंशियल will be due to this charge, because when we will be bringing unit positive charge from infinity to this point, we have to work against the force of repulsion between this plus q charge and this +1 coulomb charge, which is being brought from infinity to this point। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? कल ये सब हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको स्टार्ट कर दिया था, समझा दिया था कैसे क्या करना है। तो इंफिनिटी से सपोज पहले हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट इस इंफिनिटी से पी पर लाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज पी डैश पर एक कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, वहां पर हम लेके आते हैं इंफिनिटी से उस चार्ज को। ओके, क्या किया, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पी पर लेके आया, उसमें कितना वर्क डन करना पड़ा वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और उस वर्क डन को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाने में पहले हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स निकाल के फिर उसको थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन में, उसके लिए वर्क डन निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर वर्क डन जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे जहां से जहां तक हम लोगों को लाना है। पहले छोटा सा वर्क डन निकालेंगे इसी डायरेक्शन में। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? पहले हम लोगों को क्या करना है कि इस डायरेक्शन में एक छोटा सा डिस्टेंस के लिए इसको डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये हमारा dw निकल जाएगा, और उसी dw का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है? इंफिनिटी से लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है? इस पॉइंट तक से r डिस्टेंस तक। तो इंफिनिटी से लेके r डिस्टेंस तक लेके जाएंगे, और जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया सबको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देख लेते हैं यहाँ से इस जो इंटरमीडिएट पॉइंट P है, तो इस जगह पर कितना इसको इंफिनिटी से जब +1 कूलम चार्ज को यहाँ लाएंगे, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। ओके, आ रही बात समझ में? रिपीट करूं? फिर समझ में आ रहा है? रिपीट करूं या समझ में आ रहा है सबको? रिपीट कीजिए। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए हमारा काम क्या है, इस प्लस क्यू चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। ओके, ठीक, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल के लिए हम लोगों को वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन के लिए हम लोगों को फोर्स चाहिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। इतना सबको पता है? पता है? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। किस कौन सा फोर्स? तो इंफिनिटी से +1 कूलम चार्ज जो इंफिनिटी पर था, ठीक है, उसको जब हम लोग पी डैश पर लेके आए, तो इस पी डैश पर जो +1 कूलम चार्ज अब आ गया, उस पी डैश और प्लस क्यू चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा, ये बताइए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, वेरी गुड, बिकॉज दिस इज बोथ आर पॉजिटिव, सो रिपल्शन लगेगा, तो यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब ये फोर्स लगेगा कितना, कौन सा लॉ यूज करेंगे हम लोग फोर्स फाइंड करने के लिए? कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है, बिकॉज देयर आर टू चार्जेस एंड they are separated at a distance of r dash. Let us suppose this +1 कूलम चार्ज, यानी कि p डैश जो है वो इस o से यानी प्लस क्यू चार्ज से r डैश डिस्टेंस पे है। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि सम k यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, r डैश स्क्वायर। समझ आया सबको? फोर्स कितना होगा?
एनी प्रॉब्लम? k नो सर। q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ, यानी कि r डैश के डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने? डायरेक्शन के लिए r डैश कैप लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, समझ आ गया सबको यहाँ तक? ये वेक्टर हो गया डायरेक्शन के लिए फोर्स का। यस सर। ठीक है, चलिए अब इस फोर्स, ये फोर्स लग रहा है इधर। ठीक, मैंने आपको क्या बोला? जब वर्क डन करना है हम लोग को कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए, तो इकट्ठे हम लोग नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। क्या? छोटा सा वर्क डन। यानी कि छोटा सा वर्क डन का मतलब ये है कि इस जो +1 कूलम्ब चार्ज था, जो अब इन्फिनिटी से पी डैश पे आ गया है, अब इसी पी डैश से हम इस पॉइंट कुछ भी अपनी मर्जी से मान लेते हैं, सपोज आर डैश या आर मान लेते हैं। यानी ये इसको हम लोग पी डैश से इस डायरेक्शन में डेल्टा आर डैश डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये जो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स होगा, बिकॉज फोर्स इज इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो वर्क डन जो होगा यहाँ पर क्या होगा? इट शुड बी वर्क डन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दिस वर्क डन को हमने क्या कर दिया? माइनस टाइम। ठीक है, समझ रहे हैं? दिस फोर्स, फोर्स कितना है? ये वाला। ठीक है, Q अपॉन 4πε0 R डैश स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वर्क डन। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन क्यों लगा, समझ में आ रहा है? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वर्क डन का फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा, है ना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया है। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पर एक चीज, आप जब इसका नोट्स बनाएंगे तो उस समय आपको एक प्रॉब्लम होगी एनसीईआरटी में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि where r dash is the unit vector along op dash, r dash is the unit vector along op dash। बिल्कुल सही बात। अब क्या बोल रहा है? वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स इज फ्रॉम r डैश टू r डैश प्लस r डेल्टा r डैश। तो वर्क डन जो हम लोग इसको डिस्प्लेस किए हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ तक किए हैं? ध्यान से देखिएगा इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है r डैश, तो ये r डैश यानी r डैश यहाँ से लेके, तो r डैश से लेके r डैश प्लस डेल्टा r डैश, दिस इज डेल्टा r डैश। तो ये प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए ये डिस्टेंस? बताइए, क्योंकि हम लोग r डैश से लेके डिस्प्लेस किए हैं यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस r डैश माइनस डेल्टा r डैश होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए? यस। प्लस होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? मैं कह रहा हूँ कि इसको जो है, ये अभी r डैश पे है, r डैश से फाइनली इसको हम लोग कहाँ पर लेके आ जाएंगे? इस जगह पर, P पॉइंट पर। ओके, सॉरी यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना होगा? r डैश प्लस डेल्टा r डैश होगा या माइनस डेल्टा r डैश होगा? माइनस माइनस डेल्टा r डैश। तो लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ क्या लिखा हुआ है? r डैश प्लस डेल्टा r डैश। सही है गलत? सही है या गलत है? अरे जल्दी बोलिए, हाँ नहीं, सही है गलत? सही है या गलत है? क्या लग रहा है? जल्दी बोलिए, हाँ नहीं कुछ तो बोलिए। किससे पूछो? चलो आर्यन बताओ। सर एनसीईआरटी है तो शायद सही होगा, लेकिन अपने हिसाब से गलत लग रहा है। वेरी गुड। देखिए आप लोगों को मैंने 11th में समझाया था कि जब भी दो वेक्टर को हम लोग प्लस करते हैं तो प्लस ही रहता है, लेकिन माइनस कभी भी नहीं होता है डायरेक्टली। ठीक है, समझ गए? तो ये जो है आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको हम लोग ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सही है।
समझ गए, बिकॉज डेल्टा आर डैश विल बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव, ठीक है। तो और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तब ये सही है। तो ये जो है बोल्ड लेटर में एनसीईआरटी जब भी बोल्ड लेटर लिखता है तो उसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ गया सबको, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर डैश माइनस डेल्टा आर डैश, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस होगा, मैं वेक्टर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं आप। तो ये सही है। ओके, समझ आ गई बात सबको? Yes, sir. ओके तो यहाँ से यहाँ तक में अब हम लोगों को वर्क डन समझ में आ गया, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। तो बस अब कुछ करना ही नहीं है, अब इसी वर्क डन को हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू निकला उसको हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाए थे, तो अब हम लोग को एक्चुअली में क्या करना था, इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर लाना था। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी है और पी का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसी वर्क डन का इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। ओके, ये वर्क डन था आपका माइनस क्यू अपॉन 4 पाई r डैश स्क्वायर, और ये डेल्टा आर को हम लोग है ना डी आर लिखेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए। तो अब देखिए, अब इंटीग्रेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दिस वर्क डन इक्वल्स टू माइनस क्यू, कांस्टेंट है यहाँ पर, वेरिएबल सिर्फ डिस्टेंस है आर, है ना, तो इसलिए 4 पाई इप्सिलन नॉट, इन सब को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर में कौन हो जाएगा, 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर। ओके, और डेल डी आर डैश। आ रही बात समझ में सबको इतना? इसमें से इन सबको हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया और 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर डी आर डैश को लिख दिया इधर। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? नो सर। No, sir. अब 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर को हम लोग ऊपर जब लेके जाएंगे तो आर डैश की पावर -2 लिख सकते हैं। एनी इशू? No, sir. नहीं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए। किससे पूछूं? आदित्य आप बताइए, इंटीग्रेशन आर की पावर -2 का। यस सर। इंटीग्रेशन आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन, आदर्श आप बताइए, इंटीग्रेशन। सर नहीं पता। सब सबको बोल रखा हूँ ना इंटीग्रेशन, देख रहे हैं आज क्या हालत हो रही है, इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ। गंगोत्री, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी। नहीं पता सर। वेरी गुड। हर्षिता, Yes, sir. जल्दी बताइए। हाँ, नहीं आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो बोलिए नहीं आता है। नहीं आता सर। वेरी गुड, आप लोग नहीं सुन रहे हैं ना। हिमांशी, आप बताइए, Yes, sir. इंटीग्रेशन। पता नहीं सर। वेरी गुड, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मालूम है, एक्स की पावर n का। यस सर। नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, हिमांशी से पूछ रहे हैं। हिमांशी, तमन्ना, यस सर। बताइए इंटीग्रेशन। 2r। 2r। जयदीप, यस सर। इंटीग्रेशन बताइए एक्स की पावर n का। प्राची, देवांगन, Yes, sir. एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन बताइए। कोई मेरी बात नहीं मानता है। आयुषी लकड़ा,
यस सर। बताइए, आप ही से उम्मीद है बस, और किसी से नहीं। इसका इंटीग्रेशन बताइए, एक्स की पावर एन का। याद आ रहा है सबको? मैंने ये बता रखा है, कितनी बार यस सर। प्रैक्टिस भी कराया था। एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है आपको, आर की पावर -2 है। यहाँ पर पूछा मैंने एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन, यही होगा ना, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो एक्स की पावर -2 प्लस वन तो कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन इज -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर चले जाएगा, और x की पावर -1 क्या बन जाएगा, 1/x। तो -1/x। समझ आया सबको? समझ आया कि नहीं आया? यस। तो ये देखिए, आपको -q/4πε0 यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और इनटू में इसको हम लोग क्या है, वो तभी बताया, r की पावर -2 है, उसका dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इट कम्स आउट टू बी -1/r डैश। ओके, ये समझ आया ना, -1/x जैसे बताया उसी तरह से। एंड इसको कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, लिमिट इन्फिनिटी से लेके r तक। ये स्टेप समझ नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि यही सबसे मेन इसमें स्टेप है। क्लियर है सबको? हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया -q/4πε0। ओके, और इनटू में माइनस, अच्छा ये जो माइनस है उसको हम लोग बाहर ले आए, ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल के फेंक दें, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, तो ये हो गया 1/r डैश से एक और इन्फिनिटी से लेके r तक। ओके, ये सब स्टेप जो है बुक में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है बुक ने। ठीक है, यहाँ से उठाया, सीधा ये वाला स्टेप लिख दिया। तो अब देखिए, अब हम लोग फिर क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद वाला स्टेप q/4πε0 तो रहेगा ही रहेगा। ओके, और ये हो गया, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, तो r डैश की जगह पे r माइनस, अब r डैश की जगह पे इंफिनिटी, और 1/∞ क्या होता है बताइए, 1/∞ 0। जीरो। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, q/4πε0 r। ओके, so this is q/4πε0 r। Got it everyone? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, ये जो कैलकुलेशन किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए, बाद में अगर आप देख खुद से करने की कोशिश करें तो। ठीक है, क्योंकि आज मैं अभी जस्ट आफ्टर द क्लास में आपको यही होमवर्क है आज मेरे को, जितना जब भी आपको फ्री टाइम मिले 3-4 बजे तक में सबको ये वाला डेरिवेशन खुद से करके दिखाइएगा, सभी को ही। दोबारा मांगना नहीं है, आप लोग खुद करके भेजिएगा। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है। हो गया, समझ आ गया सबको? चलिए, तो पोटेंशियल जो हो गया आपका, यही तो था डेफिनेशन, कि इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इस इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, किसी पॉइंट पर लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, उसी पॉइंट पर उसका पोटेंशियल कहलाता है। ओके, तो ये जो है वर्क डन इतना आया, एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू potential. So potential P due to point charge Q is equals to q/4πε0 r. Got it? Got it? ठीक है, तो यही था हमारा पोटेंशियल का डेरिवेशन। तो आज सबको ही इसको डिराइव करके अपने मन से अच्छा से प्यार से इसको समझ के और बढ़िया से नोट्स बना के भेजिएगा। ठीक है, अब देखिए, कल मैंने आपको ये भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि V का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा?
व्हाट इज, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। जय माता दी। हिमांशी आप बताइए, हिमांशी। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट प्रेजेंट है तो हिमांशी, बड़ी मुश्किल है। आयुषी देवांगन आप बताइए। K into Q upon R square. यस, के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ओके, तो दोनों में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं देखिए आप लोगों को पहले भी बोला था चैप्टर 2 कंप्लीटली चैप्टर 1 पे बेस्ड है। तो जो बच्चे अभी भी बात को नहीं समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना सब कुछ रिलेटेड है चैप्टर 1 से। तो अभी भी चैप्टर बचा हुआ है, जल्दी जल्दी आप लोग चैप्टर 1 फिनिश कर लीजिए, जिनका रिवाइज नहीं हुआ है नोट्स एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों में क्या आप देख रहे हैं, सब कुछ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम, ठीक है। यहाँ पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, तो अगर आपसे दो ग्राफ बोलेगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए आपसे मैं पूछ के देखता हूं, एक ये ग्राफ बना और एक ये ग्राफ बना, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं ग्राफ नंबर 1 और इसका नाम दे देता हूं ग्राफ नंबर 2। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है और इधर डिस्टेंस है। तो आप बताइए 1 और 2 में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, गेस कीजिए। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। एक जो है वो कुछ इस तरह से चले जाएगा और एक जो है इस तरह से चले जाएगा। सर बताइए, वन वन किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ऐसा हुआ। सर, क्योंकि आप बताए थे जब डिस्टेंस बढ़ता है तो वो इंफिनिटी तक जाता है। वो तो दोनों इन्फिनिटी तक जाएगा। ये देखिए डिस्टेंस जो बढ़ेगा ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। दोनों ही इन्फिनिटी को डिस्टेंस, हाँ बोलिए बोलिए, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब इन्फिनिटी पे जाके दोनों ही जीरो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, है ना। ये देखिए ना घट रहा है, शुरू में डिस्टेंस ज्यादा था, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आके जीरो के पास जाएगा और पोटेंशियल भी जीरो पे जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाली लाइन है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे घट रहा है, यानी डिस्टेंस के बढ़ने से ये घट रहा है। देखिए दोनों घट रहा है, ठीक है। दोनों में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला है। चलिए ये आपको यहाँ पर फाइनल ग्राफ दिख रहा है। अब आपको आंसर भी मालूम है, आर्या ने बिल्कुल सही बोला था कि फर्स्ट वाला ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये पोटेंशियल का है। बट ऐसा क्यों है, क्यों, लॉजिक क्या है ऐसा। सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ आर है और पोटेंशियल खाली आर है। तो इससे क्या पता चला, इससे सर वो ज्यादा नीचे जाएगा ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दोनों को एक वैल्यू पे हम लोग देख लेते हैं। R इक्वल्स टू, है ना, मान लेते हैं सपोज 2 पे, 2 डिस्टेंस 2 मीटर पे निकाल लेते हैं। तो KQ/R तो है ना, KQ तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में R है, R स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एग्रीड, सबको समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ओनली आर है, यानी कि के क्यू बाई 2 होगा। ठीक है, तो कौन ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ज्यादा हुआ क्योंकि इसमें 2 से ही डिवाइड, इसमें 4 से डिवाइड है। तो R इक्वल टू 2 पे देखिए कौन ज्यादा रखेंगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ये वाला हो गया। एग्रीड, यस और नो? ऊपर वाला क्या हो गया, पोटेंशियल, और नीचे वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग शुरू में देख लेते हैं, स्टार्टिंग में जब हम लोग R की वैल्यू 1 की जगह पे 1/2 रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यानी कि R की वैल्यू R/2 या सॉरी 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 1/2 की का होल स्क्वायर तो होगा नहीं, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, अब बताइए कौन बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है या पोटेंशियल बड़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। तो है ना, ये R इक्वल टू जब 1/2 यानी 0.5 है, तो इसमें कौन बड़ा है, देखिए यहाँ से ऐसे हम लोग निकाल के चलते हैं ऐसे करके, तो पोटेंशियल छोटा हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो गया। ठीक है, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, इस तरह से सोच सकते हैं। दूसरा सिंपल सा फंडा ये है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो शुरुआत में तो ये जो है R स्क्वायर, यानी कि ये शुरू में जब कुछ डिस्टेंस स्टार्टिंग के डिस्टेंस में ये क्या होगा कि ये ज्यादा होगा और पोटेंशियल जो है कम होगा। फिर बाद में क्या होगा, ये जब घट रहा है तो बहुत तेजी से घट रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है, तो पहले जल्दी घटते घटते बहुत कम घटेगा, मतलब बहुत ज्यादा घट जाएगा, पोटेंशियल कम घटेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज को आप और अच्छे से एक्सप्लेन तब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको खुल के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ठीक है, वो ये है कि ये दोनों जो ग्राफ हैं, ठीक है, जस्ट लॉजिकली सोच के बताना आपको, मैं रफली एक स्केच कर रहा हूँ। ये ग्राफ था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और ये ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये पोटेंशियल का है। मुझे ये बताइए, दोनों किसी न किसी पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं, व्हाई दे आर क्रॉसिंग एट एनी पॉइंट? और अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ये, हाँ वेरी गुड, और ये दोनों इक्वल होंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो या पोटेंशियल हो, दोनों सेम होगा। तो ये कब सेम होगा, ये बताइए कौन से डिस्टेंस पे? 0। 0 ये होता है पगली, 0 पे इंफिनिटी होगा दोनों। ठीक है, R जब डिस्टेंस होगा ना, R इक्वल टू 0 होगा, तो इंफिनिटी होगा पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। 1 किस डिस्टेंस पे दोनों इक्वल होंगे? कौन बोला 1? कौन बोला? सर आदर्श। यस, वेरी गुड। वाई? देख के, फिगर देख के बोला आपने? सर यहाँ पर ये डायग्राम में, हाँ बोलिए बोलिए आदर्श, बोलिए, बिल्कुल सर सही का आपने बताया। के क्यू को 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा ना, तो दोनों इक्वल। 1 से इंटू नहीं भाई, देखो दोनों में क्या है, एक में अपॉन में R है और दूसरे में अपॉन में R स्क्वायर है। ओके, ये सॉरी सर, डिवाइड करेंगे। हाँ ये देखिए, ये पोटेंशियल था, इसमें क्या अपॉन में R है, ठीक, और एक में क्या है, के क्यू अपॉन में R स्क्वायर है। ठीक है, तो R की जगह अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और 1 तो है तो डायरेक्टली वही है। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही R इक्वल टू 1 पे सेम होंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वो R इक्वल टू 1 पे दोनों ही वैल्यूज सेम होंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट एवरीवन? बोलिए ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 1 से पहले शुरुआती दौर में कौन तेजी से कम होगा? शुरुआती दौर में कौन तेजी से कम होगा? ज्यादा कौन होगा? 1 से पहले ज्यादा कौन होगा? अरे यार, 1 से पहले यानी फ्रैक्शन होगा, 1/2 होगा या 1/4 होगा R इक्वल टू।
तो आप देखिए ना 1/4 करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर KQ/R², है ना। तो R² करेंगे यानी 1/4 का स्क्वायर करेंगे, तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो KQ/R में सिर्फ आपका क्या होगा, R की जगह पे सिर्फ 4 ही होगा ना, 4। तो 1/4 तो ऊपर 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 16 टाइम्स। तो शुरुआती दौर में कौन ज्यादा है, 1 से पहले में कौन ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। और 1 के बाद करेंगे तो जैसे यहाँ 2, तो 1 के बाद करेंगे तो फ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, यहाँ पर 2 ही रहेगा, तो ये कम हो जाएगा। तो 1 के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, मतलब फास्टली, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से पहले में ज्यादा होगा। ओके, तो इसलिए ये ऊपर नीचे क्रॉस करके ये चेंज कर लेता है अपना पाथ। आई होप ये डायग्राम आपको सबको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। आगे सर। ओके गुड, ठीक है। तो ये डायग्राम आ गया समझ में। अच्छा, एक चीज और, इसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। जो अगर मान लीजिए +Q चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका था KQ/R। ओके, अगर -Q चार्ज होगा, ये क्या किया मैंने, ये पोटेंशियल है ना, अगर -Q चार्ज होगा तो यहाँ पर Q की जगह पे क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा, तो -KQ/R हो जाएगा। ओके, और ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर होता है या वेक्टर होता है, कोई नहीं बताएगा, वेरी गुड। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, आपको सोच के रखना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया सबको कि KQ/R -KQ/R, ठीक है। Q ग्रेटर देन 0 है, Q लेस देन 0 है, तो वर्क डन बाय दिस, ये सब बात को आप लोग पढ़िएगा आपको, ठीक है। ये आ जाएगा समझ में। उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये सब बातें हो गई। अब इसके बेस पे एग्जांपल नंबर 2.1 है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा आज, ठीक है। और बाकी पोर्शन हम लोग जो है कल पढ़ लेंगे, ठीक है।